हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। कहा, साल 2023 को घोषित किया गया है मोटा अनाज वर्ष। मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डिंग पर जोर। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा गेहूं और धान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। प्राकृतिक जीरो बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर रहेगा जोर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि संबंधित कार्यों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। कीटनाशक छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना होगी लागू। इस योजना से 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की भी की जाएगी आपूर्ति। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट उन्होंने पेश किया। सीतारमण ने पीएम गति शक्ति योजना को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति प्लान से देश के हर क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर बन रहे हैं। With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing including innovative ways and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers. And 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डिंग पर जोर रहेगा। 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management.
A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना लागू होगी। इस योजना से 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की भी आपूर्ति की जाएगी। The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. निर्मला सीतारमण ने कहा कि फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म के उत्पादन और फसल कटाई हेतु तकनीक का प्रयोग करने पर जोर रहेगा। For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि खेती को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में अब कौन सी फसल बोई जाए, इसके सही आकलन करने के लिए किसानों के बीच ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management.
और किसानों के लिए बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट आज पेश कर दिया है। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे खासतौर से किसानों के लिए ये कितना लाभकारी होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने 2023 को मोटे अनाज उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डिंग पर जोर दिया है और खासतौर से इसे मोटा अनाज वर्ष बताया है। निश्चित तौर पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। हम जानते हैं कि मोटे अनाज और दलहन तिलहन पर सरकार का बहुत जोर है। ऐसे में ये इनका उत्पादन बढ़े उस पर जोर दिया जा रहा है। और अगर आप देखें बजट में किसानों की प्राथमिकता को लेकर जो सबसे मुख्य बात यह है कि एमएसपी पर जो सरकारी खरीद होती है गेहूं और धान की, उसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड खरीद की जाएगी एमएसपी पर, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तमाम उन राज्यों में जहां पर जो मुख्य फसलें होती है जिनकी सरकारी खरीद की जाती है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो या अन्य तमाम फसलें, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा ऐलान आज के बजट में किया गया है। और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार काम कर रही है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। और 2,37,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए किसानों को सीधे मिलेंगे। तो ये एक तरह से देखें तो निश्चित तौर पर बहुत एक महत्वपूर्ण हो जाता है जब बजट में हम किसानों के लिए ऐलान को देखते हैं। जिस तरह से कहा गया है कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, उसमें जो एमएसपी पर सरकारी खरीद होती है उससे किसानों को काफी फायदा होगा। इससे ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा किसान है, सीधे तौर पर उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हम जानते हैं कि सरकार का जोर इस बात पर है कि सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है सरयू नहर परियोजना, जो दशकों से लंबित थी, उसको पूरा किया गया था। सरकार का बहुत जोर है इस बात पर कि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाए। जो केन बेतवा लिंक है उस पर आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से तमाम सिंचाई परियोजनाओं को लेकर समय समय पर मोदी सरकार पैसा देती रहती है। बिल्कुल शैलेंद्र, आज का जो बजट है उसमें किसानों को काफी हद तक उनका जो जीवन है उसे बदलने की बात की गई है। बहुत सारी परियोजनाओं का जिक्र किया गया है और काफी हद तक ये कहा गया है कि किसान आने वाला जो कल है उसमें काफी बेहतर होंगे। लेकिन एक बात जो सामने निकल कर आ रही थी, किसान ड्रोन्स के प्रयोग पर भी वित्त मंत्री ने आज जोर दिया है। इस पर हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसकी क्या योजना है और किस तरह से किसानों को इससे फायदा होगा। क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे? किसान ड्रोन्स का जो प्रयोग पर आज बात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जिसमें बताया गया है कि कीटनाशकों को छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स का जो प्रयोग है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस पर भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार चाह रही कि रासायनिक जो खाद है, फर्टिलाइजर माल कम से कम हो, एक सीमित तरीके से हो और जो उर्वरा शक्ति है खेतों की वो बनी रहे। उस दिशा में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस दिशा में हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि खेती में जमीन को टेस्टिंग करने के लिए जो मृदा टेस्टिंग के एक बड़ी योजना की मोदी सरकार ने शुरुआत की थी और उस पर आगे बढ़ा गया था, जिससे कि जो खेती में जो खेती बाड़ी की जो गुणवत्ता है, जो किसानों की जमीनों की जो गुणवत्ता है, वो जान सके कि वास्तव में जरूरत किस बात की है, खेती बाड़ी के लिए किस खाद की ज्यादा जरूरत है। तो उस दिशा में आप देखें एक होलिस्टिक वे में काम हो रहा है, एक समग्र तरीके से काम हो रहा है कि जितने पानी की जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए और सिंचाई की तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से खाद में हम देखें कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, परंपरागत जो खेती। बिल्कुल शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि किसानों का जीवन किस तरह से बदले उसके लिए काफी योजनाएं बनाई गई और साथ ही साथ जो बजट है वो किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। देश की प्रगति के लिए नौजवानों, किसानों और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने वाला ये बजट है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। ये बजट देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री को कोटिशा धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने देश की प्रगति के लिए नौजवानों को, किसानों को, युवाओं को
और खास करके जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, इस विभाग में ग्रामीण विकास के लिए चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा टारगेट दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आजादी के अमृत महोत्सव में पेश हुए इस बजट को अमृत बजट के रूप में याद किया जाएगा। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने उनसे खास बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आम बजट 2022-23? देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह अमृत बजट है। अमृत बजट के रूप में इसको जाना जाएगा और आज का बजट ये आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसको साकार करेगी। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर आधारित यह बजट है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा गया है। स्वास्थ्य पर बहुत फोकस रहा है सरकार का। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। स्वास्थ्य के बारे में सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से उसमें राशि भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी राशि खर्च किए जाएंगे। और एमएसपी के बारे में सरकार ने ध्यान दिया। किसानों का विशेष करके जो बड़े पैमाने पर एमएसपी की खरीद होगी अगले बजट में, यह भी सरकार ने दिया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत का यह अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से देश के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी प्रगति होगा। निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि सब सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण जो सेक्टर है उस पर भी खासा फोकस है। हाँ, ग्रामीण भी आपने देखा कि सभी गाँवों में केबल बिछाने से लेकर के डिजिटल को और डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने का जो ये सरकार का है, ये भारत का डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ाना, और ये कोरोना के इस कालखंड में डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का एक संकल्प ये पूरा होगा। साथ साथ जो विद्यालय में 2 साल बच्चे को रुक गए थे ऐसे गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने एक नई योजना चालू करने का प्रयास किया है। तो अनेक इस प्रकार से बजट से समाज के सभी वर्गों को में खुशहाली ही है। यह अमृत बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। उनका कहना है कि सभी वर्गों और सभी सेक्टर का ध्यान रखा गया है आम बजट में। कैमरामैन राकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। 2021-22 में कृषि और से संबंधित क्षेत्रों के 3.9% बढ़ने का अनुमान है। अर्थशास्त्री अनिल कुमार ने बताया कि कृषि क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। सरकार ने जो ये पिछले साल 2 साल पहले जो पैकेज की घोषणा की, उसमें मुख्यतः जोर सीमांत या छोटे किसानों पर रहा। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का सरकार ने क्रिएट किया, उसमें काफी कुछ यूटिलाइज हो और हम फार्म सेक्टर में बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सफल हो गए। साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इसकी शहद की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे। और जितने भी ये कल्टीवेशंस हैं, जैसे कि उसमें हमारा मुख्यतः हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी आई है। और आज हमारा फार्म एक्सपोर्ट जो हम निर्यात कर रहे हैं वो भी 25% के आसपास है। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी जो हमेशा से पिछड़ा हुआ रहता था, ये नतीजे बहुत अच्छे कृषि क्षेत्र के हिसाब से आए। और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा ने कहा कि कृषि क्षेत्र कठिन से कठिन समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को उसने संभाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस क्षेत्र को और धार देने की जरूरत है। जब सारे क्षेत्र में गिरावट थी तो कृषि इकलौता क्षेत्र था जो कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जोन में था। अब ये समय है कि उसकी बढ़ोतरी, उसमें जो विकास हो रहा है उसको और हम कैसे तेज रफ्तार दें। देखिए, कर्ज देना, कर्ज एक जिसको कहते हैं रियायती कर्ज देना, ये एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है कि हम उसके लिए मार्केटिंग हम कितना बेटर करें, हम उसके लिए वैल्यू एडिशन कितना बेहतर करें, हम उनके लिए एक्सपोर्ट का बाजार कितना अच्छा करें, जिससे कि उनके उत्पाद की सही कीमत सही समय पर उनको मिल सके। देखिए, कृषि इकलौता क्षेत्र है जिसमें उत्पादक को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं होता है।
ये कोई और तय करता है। हमें इस व्यवस्था में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी हो ये इंतजाम करना है। एक बात और आप गौर करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण ने क्या कहा कि कृषि की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 20% तक पहुंच चुकी है। 65% आबादी, 50% श्रम शक्ति, उसके मुकाबले 20% जीवीए में कंट्रीब्यूशन, ये बहुत कम है, इसको हमें बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों के अनुभव के कारण भारत में कृषि व्यवस्था और उसकी चुनौतियों को बखूबी समझते हैं। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में उनका अहम योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक खेती के खतरों से निजात पाने के लिए प्राकृतिक कृषि एक बेहतरीन उपाय है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। पेश है प्राकृतिक खेती और इससे फायदे के संदर्भ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से अहमदाबाद दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उत्सव परमार की बातचीत के संपादित अंश का ये चौथा भाग। कभी कभी लेकिन एक आम धारणा ये रहती है कि जब भी कोई प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ता है तो उत्पादन जो है वो सीमित होता है या धारणा के विपरीत होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, जिसका प्रचार अब तक हमारी सरकारें भी करती आई हैं, बहुत सारे लोगों ने भी इसको किया है, वो मैंने भी किया है। अपने खेत में सबसे पहले मैंने जैविक खेती ही की थी और पहले 3 वर्ष मेरा उत्पादन बहुत कम हुआ। कीट पतंग बहुत आ गए, खरपतवार बहुत पैदा हो गया, न मेरी लेबर कम हुई, न मेरा खर्चा कम हुआ, उत्पादन भी कम हो गया। तो जैविक खेती में मेरा विश्वास नहीं है कि वो पूरा उत्पादन देगी, क्योंकि मैं उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, ये जैविक खेती से बिल्कुल भिन्न है। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जब प्राकृतिक खेती आप करेंगे, मतलब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग अलग चीज है? बिल्कुल भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो केचुआ, हलसिया, अर्थवर्म पिट में वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भारतीय केचुआ है ही नहीं, वो तो बाहर के देशों से आयात किया है। और वो जो केचुआ है वो 16 डिग्री से नीचे तापमान होगा उसमें मर जाता है, 28 डिग्री से ऊपर होता उसमें मर जाता है। वो केवल काष्ठ और गोबर ही खाता है, वो धरती में मिट्टी में छेद नहीं बना पाता, मिट्टी नहीं खाता। भारतीय जो अलसिया है, अर्थवर्म है, केचुआ है, ये धरती में 8, 10, 12 फीट तक जमीन में छेद बनाता है। धरती में जो खनिज हैं उनको खाता है और वो विष्ठा के रूप में जब पौधे को देता है तो सामान्य धरती से भारतीय केचुए की विष्ठा में 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज़्यादा पोटास है। मेरे प्राकृतिक खेत में एक एकड़ में लाखों हलसिया काम करते हैं, अर्थवर्म केचुआ काम करते हैं। अब रात दिन वो काम करेंगे और इस ढंग से वो धरती के लिए पोषक तत्व तैयार करेंगे। तो क्या अतिरिक्त किसी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता है? एक बात।
दूसरा, देसी गाय का जो गोबर है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं। और हम जो जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं उसकी विधि क्या है? हम एक 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसको छाये में रखें, 180 लीटर के लगभग उसमें पानी भर लें। देसी जो गाय है, जो स्वस्थ गाय है, वो 8 से 10 किलो 24 घंटे में गोबर देती, इतना ही लगभग गोमूत्र देती। तो उस ड्रम में इस गोबर गोमूत्र को हम मिला के डाल देते और इसी ड्रम में 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल देते हैं और उसको लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम कुल 4-5 दिन आपने घोलना है। 1 एकड़ का खाद तैयार। अगले 5 दिन के बीच में इसको खेत में आप जब पानी देते हैं, ड्रिप से देते हैं, स्प्रिंकल से देते हैं, खुला देते हैं, इसको खेत में जाने दें। जब ये खेत में जाएगा तो ये जीवाणुओं का भंडार बनता। तो ये थे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जिनसे बात कर रहे थे अहमदाबाद दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उत्सव परमार। इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।